बाद के स्तर में क्योंकि खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए हमारा क्या पहल होनी चाहिए उसके ऊपर आधारित है। मैं आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूं और अपने को चेयरमैन डॉक्टर सुधांशु सिंह तथा रिपोर्टर की तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस सत्र में आए। और आई एम रियली thankful to the organizers for inviting me to be here in this afternoon session on food security and self-sustenance. And I also welcome my co-chairman Dr. Sudhanshu Singh and Rasmi Tiwari. तो आज के इस सत्र में भी हमारे पास 5 प्रेजेंटेशंस हैं, जिसमें कि क्योंकि ये अब हमारे पास कोई 2 घंटे का समय है और हमने ये अपने को चेयरमैन के साथ ये निर्धारित किया है कि हर स्पीकर को 20-20 मिनट दिए जाएंगे और 20 मिनट के बाद 5 मिनट का इंटरेक्शन सेशन रखते हैं ताकि इसको हम ऑन टाइम ख़त्म करें और अगला सेशन फिर 4 बजे शुरू हो जाए। और हमने ये भी डिसाइड किया है कि पहले जो 3 स्पीकर हैं उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें तथा उसके बाद डॉक्टर सुधांशु सिंह इसको आगे सेशन को आगे ले जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर चैनिंग, डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिवीजन इफ्री वाशिंगटन फॉर हिज प्रेजेंटेशन। मैं आपको आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशंस टू द ऑडियंस हियर। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर चैनिन heads the environment and protection technology division of IFPRI and explores 5 themes which IFPRI work on 5 themes: global change, natural resource management, science and technology, policy, spatial data and analytics, and institutions and governance. He has experience in various organizations including Oxford University Press, Washington World Bank, and many organizations. So I request Dr. Chen for his presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Co-Chair, distinguished delegates. You can't hear? It's on. Like that. Okay. Thank you. Thank you, distinguished delegates. It's an honor to be here. Today, I'm going to talk about global bread baskets and global shocks. So I'll look through. Let's go to the next slide, please. So what I'll cover today is just 3 things broadly. One relates to trends for global bread baskets in a warmer world, with a focus on India. The second is global shocks in a more volatile world that we're expecting. And the third item will be a brief look into a current shock, which is the Ukraine crisis and the global food sector. And then we'll look at some conclusions and implications with a focus on India. So those are the 3 things we're going to cover today. So we can divide the world into 13 breadbasket regions, or at least the authors of this paper have done so. India is in the South Asia region, and it is the very important part of the South Asia region breadbasket. So let's go to the next slide, please. So India itself is an important breadbasket for the world. And this is particularly true in certain products. So for example, in global dairy production, it's right around 1/5. In global rice production, it's a little more than 1/5 of the global total of production. So India today is already this very large and important global producer, right?
And if we go and we look forward in time, which is what we're going to do next, it's robustly projected to become more so. India is set to become more important in the global food system than it already is. So let's please go to the next slide. So we're going to look forward to 2050, and we're going to do this implicitly. आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। चेयरमैन सर, एक निवेदन है हाँ जी बोलो। कि यहाँ 80% लोग प्रोफेसर साहब की भाषा को नहीं समझ पाए हैं। जी। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लें हम? हम तो कोशिश एक आध करेंगे शब्द भाई साहब हिंदी में हो जाता तो हम कुछ लगा लेते। इंक्रीमेंट सब इंक्रीज तो हमारी समझ में आया है भाई साहब। नहीं कोई ये बात भारतीय किसान संघ के जितने भी लोग बैठे हैं, शायद जो केरला तमिलनाडु के होंगे वही कुछ समझ पाए होंगे, अदरवाइज कोई नहीं समझ पाए होंगे। अब ये इस तरीके की है तो हमको कुछ तो हिंदी में कुछ बोला जाए तो हमारी कुछ समझ में आए, हम कुछ जाके बताएं उसका। हम आप समझते हैं कि तो आप थोड़ा सा ये हमारा निवेदन है आपसे भाई साहब। आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ जी, मैं आपकी तरफ से पूछता हूँ। प्रोफेसर चैनिंग, व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडियन फूड सिस्टम? मैंने इनसे ये पूछा कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका भारत के खाद्यान्न के ऊपर क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा, वो मैंने प्रश्न आपकी तरफ से इनसे पूछा है। Have you got my question? Yes. Okay. So I think it's up to you. What is the long-term implication of Ukraine? You decide. Big choice that you have. Otherwise, I think that eventually the war in Ukraine will end, and markets will return to normal, and you will proceed. But it's the lesson that you take from it that will be the most important part. Thank you very much. Sir, my question. But overall, the overall picture is fairly positive. There are, of course, some unlucky farmers who have paid high fertilizer prices and then experienced a negative production shock, and therefore they're not benefiting from the high output prices, right? And they have a legitimate problem on their hands. But by and large, you're looking at a pretty favorable production environment for the U.S. farm system. I'll take that question further. I'm a US farmer, so I'm farmer in USA. So as he said, like the major impact that has happened after this Ukraine, fertilizer prices went up by 45%. Pesticide prices went up by 24%. So overall the production cost is going up, and whatever the produce that we get in the grocery stores, the prices went up by 20%. Okay, अच्छा मैं एक बार कोशिश करूंगा बताने की। इन्होंने ये पूछा कि जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कोई स्पीकर से ये पूछा, उसका अमेरिका के किसानों के ऊपर क्या प्रभाव है। तो अब ये बता रहे हैं कि क्योंकि खाद्य सामग्री इसके कॉस्ट तो बढ़ रही है, प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको फ़ायदा है। लेकिन इन्होंने एज ए किसान, वहाँ किसान है वहाँ के, तो उन्होंने ये बताया कि फर्टिलाइज़र जो हमारी जो खाद है और दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो किसानों के ऊपर बहुत है, इसलिए इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, अमेरिका में भी बढ़ रही है। तो इस तरह कोशिश की हमने कि इस सेशन को चलाएं। थैंक यू वेरी मच चैनिंग। थैंक यू। रिटायर हुए हैं एज ए डायरेक्टर फ्रॉम साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी। इससे पहले वो नार्म हैदराबाद में डायरेक्टर थे, और उससे पहले वो डायरेक्टर थे यहाँ आईसीआर का इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च। और डॉक्टर जोशी को तो आप सभी जानते हैं, वो एक जाना पहचाना चेहरा है सबके बीच में, किसान भाई भी जानते हैं, हम सब जानते हैं इनको। और मैं गुजारिश कर सभी को मेरा नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर टी.आर. शर्मा जी, उपाध्यक्ष जी डॉक्टर सुधांशु जी, रिपोर्टियर, सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय किसान संघ और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मुझे यहाँ पे अपने विचार रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर दुबे के साथ डिस्कशन में ये मुझे
आभास हुआ कि उन्होंने ये चाहते हैं मुझसे कि भारत की जो कृषि है वो एक सक्सेस स्टोरी है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच बताऊँ। ये वैसे भारत की कृषि जो सक्सेसफुल है ये सभी को ज्ञात है। ये जो सक्सेस स्टोरी है, मैंने इसीलिए ये अपना टॉपिक रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया ए ग्लोबल सक्सेस स्टोरी। ऐसा इस तरह की सक्सेस स्टोरी किसी और देश और डेवलपिंग कंट्री पर्टिकुलरली वहाँ नहीं हुई है। ये हमारे देश में ये क्रांति आई है और ये क्रांति की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए हैं, थोड़े से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आए हैं। तो मैं इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत साल पहले 1960-70 के दशक में, 60 के दशक में पेडलॉक ब्रदर्स हुआ करते थे। उन्होंने ये प्रोजेक्शंस करे थे कि इंडिया में बहुत बड़ी भुखमरी होगी और वो बिल्कुल फेल कर दिया। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के पॉलिसी मेकर्स ने इसको फेल कर दिया और हम आज डेफिसिट से सरप्लस की ओर आ गए। तो यही थोड़ी सी कहानी में बहुत छोटे शब्दों में आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगा। नेक्स्ट प्लीज़। मैं 4 चीज़ों को बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे हुआ। दूसरा मैं बताऊँगा कि इसके क्या ड्राइवर्स हैं, किस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ हुआ और जगह नहीं हुआ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फ्यूचर में क्या चैलेंजेज हैं हमारे लिए, कृषि में फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेज हमारे पास हैं और हमें आगे किस तरह से मूव फॉरवर्ड करना है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊँगा। नेक्स्ट प्लीज़। तो सबसे पहले मैं एक जस्ट कंसेप्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा फूड सिस्टम क्या है। हम लोग जब डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को तो अलग अलग सेक्टर्स में डिस्कस करते हैं। पूरा जो एग्री फूड सिस्टम है एक पूरा का पूरा अगर हम इसको लेके चलें तो शायद और भी ज़्यादा तरक्की हम कर जाएँ फ्यूचर में। ये पूरा एग्री फूड सिस्टम में 3 पिलर मैंने दिखाए हैं। एक पहला वाला जो पिलर है वो है प्रोडक्शन सिस्टम। ये किसानों के कंट्रोल में होता है कि प्रोड्यूस करना है। वो पीछे से बैक एंड में सीड सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, पेस्टिसाइड, सब चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज है, प्राइसेज हैं। तो वो एक सेक्टर वो है। और अंत में जो सबसे लास्ट में वो कंजम्पशन सेक्टर है, जो खाने वाले लोग हैं। तो किसान भी उसको यूज करता है, बाकी लोग भी यूज करते हैं, जो लास्ट का हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में जितने लोग होते हैं, ये बीच का जो सेक्टर है ये जो है इनको जोड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, मार्केट्स हैं, फाइनेंसिंग है, लोन लेना है आपने, मशीन्स हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे फैक्टर इन बीच में हैं। तो ये तीनों सेक्टर हैं, हमारे साथ लगभग अलग अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको अगर हम एक तरीके से जोड़ के डिस्कस करें तो हमारा कृषि में और भी अच्छा उद्धार हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सो ये बहुत सारे हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन आए। मैं कई बार सुनता हूँ कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, लोग पूछते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन इस देश में आए हैं जो अननोटिस्ड हो गए, नोटिस नहीं किया लोगों ने। तो सबसे पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसे हरित क्रांति हम लोग कहते हैं। डेयरी सेक्टर में भी बहुत बड़ी क्रांति आई है। इंडिया नंबर 1 है आज मिल्क प्रोडक्शन में। अब सिर्फ 20 साल पहले अमेरिका सबसे आगे था मिल्क प्रोडक्शन में। भारतवर्ष जो है बहुत आगे बढ़ गया मिल्क प्रोडक्शन में, डेयरी क्रांति आई। पोल्ट्री का रिवॉल्यूशन आया। पोल्ट्री जो है जिसको हम पहले इंपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें, आज हम एक्सेस में है पोल्ट्री सेक्टर में। और इसकी वजह से मेज में रिवॉल्यूशन आया, मेज की क्रांति हुई। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हॉर्टिकल्चर का रिवॉल्यूशन जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, हॉर्टिकल्चर का रिवॉल्यूशन आया। कॉटन रिवॉल्यूशन, पल्सेज में एक क्रांति आई। ये तो बिल्कुल हाल की सक्सेस स्टोरी है कि सुबह अपने डॉक्टर महापात्रा भी बता रहे थे कि हम डेफिसिट में थे, इंपोर्ट करते थे और 2-3 साल के अंदर हम 10 मिलियन टन्स हमने एक्स्ट्रा पल्सेज प्रोड्यूस करी है। अब विषय हुआ कि इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है। शुगर में रिवॉल्यूशन आया हमारे देश में। तो ये बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ये 2-3 सक्सेस स्टोरी की वजह से क्या हुआ ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज़। तो सबसे पहले जो फूड इनसिक्योर कंट्री थे, हम इंपोर्ट करते थे खाद्यान्नों को। राशन होता था 1960 के आसपास, बहुत सारी गरीबी थी, लोगों को उतना अनाज नहीं मिल पाता था जितना उनकी ज़रूरत होती थी। तो सबसे पहली जो सक्सेस स्टोरी है वो फूड इनसिक्योरिटी से
फूड सरप्लस हम लोग हो गए हैं। और ये जो है मैंने एक स्टडी करी थी हम लोगों ने कि जो शुरू के 2000 सन में शुरू में 2020 में कितना खाद्यान्न चीज़ों का हमारा लगेगा उसके प्रोजेक्शंस करे थे, और वो प्रोजेक्शन 2 कॉलम में दिखाए गए हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हम हर क्षेत्र में, हर फसल में हम लोग सरप्लस हैं। आप राइस देख लीजिए, आप जो है व्हीट का एग्जाम्पल है, कोर्स सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, फूड ग्रेन्स में सरप्लस हो गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, मिल्क में, फिश में और शुगर में हम लोग सब में सरप्लस हैं, एक्सेप्ट ऑयल सीड नहीं, ऑयल में कहूँगा मैं, एडिबल ऑयल में डेफिसिट है। तो ये सब जगह हम लोग अब सरप्लस हैं, जो हम पिछले शताब्दी में डेफिसिट में होते थे। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ गया काफ़ी तेज़ी से, और जो है जो भी आप ये कमोडिटी लेते हैं उसमें कंजम्पशन हमारा सब चीज़ों में बढ़ गया है। नेक्स्ट प्लीज़। ये देखिए, ये जो फूड प्रोडक्शन 1950 से लेके कैसे बढ़ रहा है, देखिए आप। तो सबसे ऊपर की लाइन और 2 लाइनें हैं, ये राइस एंड व्हीट की हैं, कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फिर दूसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन के बाद रिवॉल्यूशन आ रहे हैं जिसको हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और नीचे वाली लाइनें जो हैं वो पल्सेज एंड कोर्स सीरियल्स की लाइनें दिखाई गई हैं। तो ये इसमें देखेंगे आप, जो फूड प्रोडक्शन हमारा था सिर्फ 50 मिलियन टन था 1950 में, सिर्फ 50 मिलियन टन, और आज हम 316 मिलियन टन के आसपास पहुंच गए हैं। इतनी क्रांति हुई है। और जो 50 मिलियन टन है, जब 1950 में जो हमारा प्रोडक्शन था, आज के दिन हमारे पास उससे 20% ज़्यादा बफर स्टॉक है। पहले हम 3 मिलियन टन के लिए इंपोर्ट के लिए जाते थे विदेशों में कि हमें भैया थोड़ा सा इंपोर्ट करना है, अमेरिका से रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन आज हमारे पास 3 मिलियन टन तो बहुत पीछे रह गया। बफर स्टॉक हमारे पास जो है वो 60 से 70 और 80 मिलियन टन भी हो गया था एक बार। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा सक्सेस है कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, नेक्स्ट प्लीज। ये कॉटन और शुगर केन के जो हैं आंकड़े हैं। अभी देखिए दोनों कमोडिटीज़ में, दोनों में कितना एकदम से 1900 आप देखेंगे 1960-70 के बाद एकदम से क्रांति आई है। कॉटन में बीटी कॉटन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है और उसमें हाइब्रिड था, उसमें क्रांति आई है। जिसमें हम इंपोर्ट करते थे कॉटन को विदेशों से, वो हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो बीटी कॉटन से हमारे ये फ़ायदा हुआ, कॉस्ट हमारी घट गई बीटी कॉटन की वजह से, और प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया। तो एकदम से क्रांति आई। इसी तरह से शुगर में सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ी, लेकिन शुगर कंटेंट भी बढ़ गया। शुगर कंटेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया। सो अगर 1 क्विंटल आप प्रोसेस करते हैं शुगर के, तो शुगर हमारी ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज़। ये हॉर्टिकल्चर रिवॉल्यूशन है। देखिए किस तरह से हॉर्टिकल्चर में क्रांति आई है, कैसे तेज़ी से प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। ये अलग अलग जो हमारे हाई वैल्यू कमोडिटीज या मिल्क एनिमल सेक्टर से रिलेटेड हैं। मिल्क प्रोडक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन हमारा जो है आज 203 मिलियन टन्स में हम लोग पहुंच गए हैं, जो हम बहुत पहले 22 मिलियन टन में होते थे। इतना कम प्रोडक्शन था। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन, और साइंस ने जो है वो बीमारियाँ जो जानवरों को होती थी, वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करी, वैक्सीन्स आए बहुत अच्छे, उससे बीमारियां कम हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, नए तरह के चारा आने लगा। तो प्रोडक्शन हमारा और नंबर 1 है भारतवर्ष इस समय डेयरी सेक्टर में। एग प्रोडक्शन की ग्रोथ देखिए, 5 बिलियन अंडे होते थे 1970 में, आज 122 बिलियन अंडे इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन पोल्ट्री सेक्टर। इसका मीट प्रोडक्शन भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो ये क्रांति जो है, ये सब जो अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग कमोडिटीज़ में आई हैं, ये सब क्रांति जो है किसानों को, वैज्ञानिकों को, पॉलिसी मेकर्स को, ये सब इसके ड्राइवर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब इनकी वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन तो बढ़ा है और इससे अवेलेबिलिटी बढ़ी हुई है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी और लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है।
हर क्षेत्र में लैंड एंड लेबर की जो कृषि से संबंधित है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हम कम जगह पे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं और एक लेबर जो एक जो हम खेती में लगता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है जो हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कृषि में वो उसकी वजह से नहीं आ रही हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, वो आ रहा है कि हमारी साइज ऑफ लैंड होल्डिंग घट रही हैं, उसकी वजह से कृषि में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये होती है कि अगर सारी इनपुट्स को लेके देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो भी हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक्सेप्शनल है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट प्लीज़। तीसरा इम्पोर्टेंट जो चेंज आ रहा है वो डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। हम लोग धीरे धीरे हॉर्टिकल्चरल और लाइव स्टॉक की ओर मूव कर रहे हैं। जो शेयर ऑफ फूड क्रॉप्स का है वो उसका शेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट घट रहा है। हाई वैल्यू कमोडिटीज़ जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, अंडे हैं या फिश है और दूसरे तरह का मीट है, इनका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो कोर्स सीरियल्स हैं या सीरियल्स हैं और पल्सेज हैं इनका कंजम्पशन थोड़ा घट रहा है। ये जो हाई वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ इसका प्रोडक्शन इसका जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न हम लोग का खाने का तरीका बदल रहा है। हम लोग ना ज़्यादा फ्रूट खाने लगे हैं, ज़्यादा सब्जियाँ खाने लगे हैं, अंडे खाने लगे हैं, मीट खाने लगे हैं, दूध पीने लगे हैं, चीज़ आज आइसक्रीम हम खा रहे थे खूब मजे में। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम हो रहा है, जो किसान इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह से डिमांड चेंज हो रही है किसान उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन धीरे धीरे हो रहा है। और फ्रूट्स वेजिटेबल और मीट लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इसका जो है आधे से ज़्यादा शेयर है पूरे वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट में। तो ये भी एक अपने अनोखे तरीके का सक्सेस है। नेक्स्ट प्लीज़। तो सबसे बड़ा सक्सेस है जो हम डेफिसिट से सरप्लस हुए और सरप्लस से अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, विदेशों को भेजने लगे हैं। देखिए एक्सपोर्ट तेज़ी से आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ऊपर वाली लाइन है वो एक्सपोर्ट की लाइन है। कृषि संबंधित जो हमारे कमोडिटीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट एकदम बढ़ रहा है और हम अब $50 बिलियन का जो है हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये एक मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहाँ हम इंपोर्ट करते थे और अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और जो एग्रो प्रोसेस कमोडिटीज़ हैं उनका भी शेयर बढ़ता जा रहा है हमारी जीडीपी में और इनका भी एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। और जो हमारे फ़ायदे हुए हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं हुआ, इससे किसानों की इनकम में भी फ़ायदा हुआ, बढ़ी किसानों की इनकम। जो मैं बता रहा था घटी जो है जो बार बार डिबेट होती है कि किसान की इनकम घट रही है, वो साइज ऑफ होल्डिंग की वजह से घट रही है कि उनका साइज ऑफ होल्डिंग घटता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी में हमको सफलता मिली है। गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स जो है फूड सिक्योरिटी जो है पब्लिक डिस्पेंस सिस्टम की वजह से हो या भी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो आई थी उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है फ्री राशन जिसमें दिया गया था, ये इसकी वजह से कि हम सरप्लस थे, एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। अभी जो आप किसी ने सवाल पूछा था कि हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, यूक्रेन और रशिया जो हैं दो कंट्री, ये वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों में लड़ाई होने की वजह से वीट का एक्सपोर्ट दुनिया में कम होने लग गया। इससे इंडिया की जो वीट की डिमांड एकदम से बढ़ गई और हमने उसका एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो एकदम से टेम्परेचर हमारा बढ़ा था मार्च के महीने में, तो वीट का प्रोडक्शन घट गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमारे को उतना नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट को। और गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, नॉट थ्रू दी प्राइवेट सेक्टर। जो गरीब लोग थे उनका देखिए नंबर कैसे घट रहा है। 11% ही लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं, जो कि पहले करीब 70% हुआ करते थे। लेकिन दो समस्याएं अभी भी हमारे पास हैं। एक तो अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है। अंडर नरिशमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको टैकल करना है। और जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड हैं, वाटर टेबल का घटना, ये और जो है सॉइल डिग्रेडेशन, इनकी दिक्कत है। नेक्स्ट प्लीज। तो जो ड्राइवर्स हैं, जो क्यों ये सक्सेस मिली है, ये इसके 4 कंपोनेंट हैं मेन। टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अच्छा बीज है, अच्छी फर्टिलाइज़र है,
पेस्टिसाइड है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा पॉलिसीज का रिलेटेड है, कैसे प्राइस फिक्स हुए, प्रोक्योरमेंट हुआ, और भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने निकाली। इंस्टीट्यूशंस बने, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सीड सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इरिगेशन में बहुत जोर दिया। नेक्स्ट प्लीज़। ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं अभी, और माननीय प्रधानमंत्री ने ये टारगेट दिया है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया होना है। इसमें कृषि कम से कम $2 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। डबलिंग फार्मर्स इनकम वाला कंपोनेंट था। लोकल टू ग्लोबल एक नया इस इशू आया है जिसको गवर्नमेंट इसको करने में तैयार कर रही है। नेक्स्ट प्लीज़। ये है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग स्टेट्स में मैंने दिखाया है कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग स्टेट्स में कैसे हो रहा है। एक इंडेक्स हमने बनाया, उसको ये देखा कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा कम है जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा कम हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और गरीबी भी ज़्यादा है। तो उन स्थानों को में हमें ज़्यादा एक फोकस अब करना होगा, तब हम जो है पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन का इंडेक्स सब उस पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा इनके बराबर ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। डाइट पैटर्न में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये सबसे पहले जो कंजम्पशन में हम पैसा लगाते थे पहले, अब जैसे पहले 80% जो हमारी इनकम थी वो खाने में खर्च होता था। अब ऑन एन एवरेज इंडिया का 50% हम खाने में खर्च करते हैं, बाकी 50% दूसरे। ये भी एक बहुत तरक्की का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। डाइटिंग पैटर्न्स चेंज हो रही हैं। हम लोग ज़्यादा हाई वैल्यू कमोडिटीज़ खा रहे हैं, कम धीरे धीरे ग्रेन को खा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, फूड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब इंडिया में जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत मिलने लगे हैं, पिज़्ज़ा मिलने लगा, बर्गर मिलने लगे हैं, और बाहर आप जाएंगे अमेरिका वगैरह में, वहाँ डोसा मिलने लगा, छोला भटूरा मिलने लगा। तो डाइट्स का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हम कुछ बाहर से ला रहे हैं, कुछ यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन और डाइट्स की वजह से फूड सिस्टम में चेंज हुआ और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़र्क इसकी वजह से आ जाता है। नए तरह के फूड बनने लगे हैं। जो मीट खाने वाले लोग थे अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में, वो लोग मीट कम खाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, वेजिटेरियन होना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो बर्गर बनाए और उसमें जो मॉडर्न फूड बनाए, इम्पॉसिबल बर्गर जैसे उन्होंने कहा है, वो जो है उसमें मीट नहीं होता, लेकिन सारा कुछ मीट की तरह आप खाएंगे तो लगेगा। मैंने नहीं खाया लेकिन मुझे लोग बताते हैं, और इसकी बड़ी चेन खुल गई है। और लैब में फूड बनने लगा है खेत के बदले लैब में। तो ये भी एक नया तरह का प्रयोग हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि हमने भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये जो 3-4 जो हैं चैलेंजेज हैं, आगे लैंड होल्डिंग घटने वाली है, लेबर की स्कैसिटी हो रही है, वेजेज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, सॉइल का डिग्रेडेशन, वाटर डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, ये चैलेंज हमारे सामने है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट इस समय हो रहा है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से फसल में फ़र्क आने लगा है। नेक्स्ट प्लीज़। कंजम्पशन के जो चैलेंजेज हैं, ज़्यादा लोग फ्यूचर में होंगे, उनको खिलाना है हमने कम ज़मीन में, और बाकी जो है फूड सेफ्टी के इश्यूज भी आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज़। फ्यूचर मार्केटिंग के चैलेंजेज हैं, जो फ्रेगमेंटेड मार्केट्स हैं, छोटा सरप्लस होता है किसान के पास, ज़्यादा होगा तो बार्गेन कर सकते हैं, तो वो एक चैलेंज है। प्राइस वॉलेटिलिटी है, प्राइस कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, जिस समय किसान बेचने जाते हैं उस समय घट जाते हैं, बाद में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो फ्यूचर है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से आ रही है, और स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT बेस्ड एग्रीकल्चर, इसका जो बिज़नेस है ग्लोबली $15 बिलियन का बिज़नेस है, तो इसको हमको टैप करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। ये अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर यूज हो सकता है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, एंड टू एंड जो है डिजिटल एग्रीकल्चर का प्रयोग हो सकता है। एग्रीकल्चर में भी कम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये अलग अलग लेवल में है, फार्म लेवल में कैसे होगा, गवर्नमेंट लेवल में कैसे होगा, प्राइवेट सेक्टर में कैसे होगा, ये अलग अलग लेवल में एग्रीकल्चर में किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लास्ट जो मेरा है कि आगे क्या करना चाहिए हमने। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्शन को जो है हमें प्रोडक्शन पे जोर जरूर देना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए साथ में।
और रीप्रायोरिटाइज रिसर्च एजेंडा को करना है, जिससे हम जो ज़रूरत है मार्केट में, जो दुनिया में, उसको हम प्रोड्यूस कर सकें। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और जो इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे FPOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए किसानों ने जुड़ना चाहिए आपस में, सो दैट दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट और एग्रो प्रोसेसिंग को पूरा जोर देना चाहिए, जिससे हम आगे इनमें बिल्कुल लीडर बने। नेक्स्ट। तो अंत में, नेक्स्ट प्लीज। अंत में यही कहूँगा कि इंडिया आने वाले टाइम में भी और अभी भी एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहा है और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा एक्सपोर्ट, और जो गरीब देश हैं वहाँ पे भी भुखमरी को ख़त्म करने में पूरा सहयोग देगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जोशी। अभी समय तो वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किसी का एक कोई प्रश्न हो तो। एक क्वेश्चन मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा। हाँ, आप बोलो डॉक्टर साहब। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हमारी कौन ही है। ये जो हाई चेंज में जो स्टेट्स बताई हैं, इसका क्या आधार है? पंजाब और हरियाणा से हिमाचल का जो तुलना किया है, पर कैपिटा इनकम भी हिमाचल की कम है, क्या आधार है इसका? ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये कृषि जो है कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, लैंड की और लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है। उन दो जगहों में लैंड और लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा। दूसरा, पंजाब एंड हरियाणा क्या राइस एंड व्हीट ही लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो आपने एग्जाम्पल दिया, फुल्ली डाइवर्सिफाइड हो गया, फ्रूट्स की ओर जा रहे हैं। कोर्स सीरियल बहुत कम प्रोड्यूस करने लगे हैं, सीरियल्स कम प्रोड्यूस करने लगे हैं, तो वो। और दूसरा जो है, ये जो लेबर और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा है उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में। तो वहाँ से मार्केट लिंकेज आपने सुना भी होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश के किसान खुश हैं एज कम्पेयर टू खेती-बाड़ी का छोड़ दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। काफ़ी वहाँ पे जो सबसे कम हो रहा है वो ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है। ईस्टर्न इंडिया हमारा जो कंसर्न होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, वहाँ पे होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू सर। सॉरी, बाकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेना बाद में, क्योंकि नहीं तो 3 लेक्चर ख़त्म नहीं होंगे हम लोगों के। हमें 4 बजे से पहले ख़त्म करने हैं तीनों। सो अगले स्पीकर को मैं बुलाता हूँ यहाँ, डॉक्टर अजय कोहली। ये फिलिप। Let me also quickly apologize for not being able to make this presentation personally. I really wanted to be present amongst all of you to make this presentation. I want to thank the organizers for giving me this opportunity, Dr. Mishra, Dr. Dubey, and I want to thank Dr. Mahapatra for his support and role. Let me quickly put the presentation on for today. I hope you can all see this. So the title of my talk today is Strategic Innovations, the Bedrock of Future Food Security. I think we can be quite proud in India that we have achieved the food self-sufficiency, which is a major milestone since our independence. The progression and the resilience of the Indian farmers to multiple challenges is a tribute to their perseverance and determination to serve and secure the nation's demand for food, feed, fodder, and other raw materials. The production systems are on a path, although slow, to climate resilience, with a big example provided by the direct seeded rice system. And I will mention that a little later again. And the rice-based cropping systems contribute in a major way by providing food and livelihood through a major staple for resource-poor, small and marginal farmers in the country. Now, the topic that we have in front of us today, harnessing Indian agriculture for domestic and global prosperity, it surely has a long history of why this topic should be discussed. But in the present context, the Sri Lanka crisis and the Russia-Ukraine war, that really puts this in perspective and raises a prospect
of food crisis through availability, accessibility, and affordability issues. The other long-standing aspects under which we need to discuss this are some of the very obvious reasons, and one of them is the growing population, leading to India being the most populous country in the near future. We can also not forget that despite the major success of Green Revolution, there have been some adverse effects on the water table and the soil and food pollution that we have been seeing in the last few years. There is also been a major issue for the migration from rural to urban areas, which causes a major lack of farm labor, and it is now coming to a point where it is getting to a disturbing level. Also, a substantial food and nutrition deficit population still exists. We still have nearly 250 million people who go hungry. And so the productivity versus the market accessibility issue still remains a real problem. While we have been improving the productivity, the accessibility to the poor for the grains has not been improving as rapidly as one would expect. There are also at the global, the country level, export ambitions that the country has, and how much that plays into making sure that we are really self-sufficient needs to be considered. So coming from the Rice Research Institute, I would like to put all these aspects with rice as an example. So the area of the rice cultivation has almost been stable for the last few years, and the per capita rice consumption is declining, whereas rice export is really increasing. There is also a large water footprint. There is high greenhouse gas emissions associated with rice production, and the large amounts of stubble burning that happens under the rice production systems in some parts of the country. So these are parts of the problems associated with rice, and there are obviously other aspects and other problems associated with different crops. But if we were to take this further ahead, there is a real need for research on rice, which must be reoriented towards the emerging issues. And there are aspects of profitability, equity, quality and climate variability, environmental safety and sustainability that has to become part of the equation now in our agricultural systems. Going ahead with rice as an example, ED has been collaborating very heavily with Indian policymakers for a number of years, from the start almost in the 1960s. We collaborate very heavily with what we call NARES, the National Agriculture Research and Extension Systems, and other stakeholders. And we try and provide the solutions that can address a number of the SDG goals, and I've listed some of them where we clearly make a difference and have a role. So going back to the topic about strategic innovations, how can strategic innovations really provide some solutions to the problems that I have listed or kind of talked about in the previous slides? And it might help to start by defining what strategic innovations are. The way I look at it, strategic is like fighting the competition through an advantage. So we generate an advantage by way of having a strategy, and we fight the competition that we have in that sector to try and get ahead of the competition. And innovation is avoiding that competition through novelty. But we cannot forget that whether we are fighting the competition or avoiding the competition does catch up. And so a better approach would be actually having an advantageous novelty, which can then address the aspect that as the competition catches up with our advantageous position or with our novelty, we are still ahead in the game.
And it is this kind of advantageous novelty that causes or leads to transformative changes. And the goal of all research that we do should actually, at least in agriculture, should at least be transformative changes which directly impact the society and the economy and the environment. And I want to quickly give one example of what I think is really a great example of transformative change. Not only because it shows the example of transformative change, but it shows it through a single gene effect. And in this case, what we have characterized or assessed the impact of the SUB1 gene, which actually makes the rice tolerant to flooding for 12 days. So if rice field is flooded for 12 days up to 14 days, and after the 14 days, if the water recedes, the rice field will survive, and the farmer will be able to get his harvest, or her harvest for that matter. And when a farmer uses this variety which has the SUB1 gene, the SUB1 gene is the gene that actually makes this rice flood tolerant. There is an advantage of $192 per hectare. And what we have assessed is how a farmer uses those $192. And as you can see from this pie chart, the farmer would use it on different aspects. But I want to point out to you the money that goes into educating the child. And this education of a child in a household where there may not be another educated person, or may not be an educated person in the neighborhood or in the village, is what we think is a transformative change. That one child can actually make a big difference to the community through the knowledge and through the information that this child brings, and especially nowadays in the age of social media. So a single gene can have that kind of an effect. But we have thousands and thousands of genes, because we have the International Rice Gene Bank, where India has actually contributed the maximum number of accessions. As I've listed over here, India is the number one contributor with 17,595 accessions, nearly 13% of the total number of accessions that we have at the Rice Gene Bank. And so if you take all the genes, all the accessions together, and the genes that they can bring, or the functional alleles that they can bring to make a difference, just like the SUB1 gene, there is a great opportunity to be able to conduct the research on this accessions and be able to get the genes, some of which might have an effect directly, the kind of effect that the SUB1 gene shows. And we have seen, if not at a single gene level, at least at the variety level, that nearly 18 million tons per year is the additional rice that India can harvest because of this kind of accessions that have been used in the breeding programs at IRRI. And that has been quantified as the high-yielding varieties advantage of 3.6 billion per year. And IRRI germplasm alone contributes to $1.8 billion per year through these high-yielding varieties. So there are options and solutions available, and we have been presenting those options, and we have made a lot of progress. And in particular with India, it all started with the rice variety called IR8, which was called the miracle rice, which ended up avoiding a famine in India in the 1960s. And India started its partnership with IRRI during the 1967 through two main rice research centers. It was the ICR Research Center for National Rice Research Institute in Cuttack and the Indian Institute of Rice Research in Hyderabad. And since then, India actually hosts IRRI's regional rice breeding hub, the IRRI South Asia breeding hub at ICRISAT in Hyderabad, in close association with ICAR, ICRISAT, the Department of Agriculture and Farmers Welfare, and the Department of Biotechnology, and other public and private sector organizations. This center
does most of the regional breeding in the South Asia program. There are many other that we have been seeing the advantage of recently. In 2017, the Union Cabinet, chaired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, approved the establishment of the IRI South Asia Regional Center, which is called ISARC, at the campus of National Seed Research and Training Center in Varanasi. His Excellency Shri Modi also inaugurated the ISARC on 29th December 2018. Namaskar. Namaskar and good afternoon. Thank you, Dr. Kohli. नेक्स्ट स्पीकर मैं आमंत्रित करूंगा हरवीर सिंह जी जो कि एडिटर इन चीफ हैं रूरल वॉइस के और काफ़ी ब्रिलियंट इनका सीवी में पढ़ रहा था। ये आपसे बात चर्चा करेंगे खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि में नीतिगत और टेक्नोलॉजिकल नवाचार की ज़रूरतों के ऊपर। ये इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। एक्टिवली इन्होंने पार्लियामेंट के डिबेट्स को कवर किया हुआ है और काफ़ी हाई लेवल पे जो इंडियाज़ के हुज एंड बड़े बड़े जो प्रिय चेयरमैन साहब और को चेयर बाकी जो लोग हैं, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, और इसके साथ ही जो आयोजक हैं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय किसान संघ और ICAR को। तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी जोशी जी को सुना और भारत की जो एक कामयाबी की कहानी है एग्रीकल्चर में, उसको बहुत बेहतर तरीके से अभी तक का जो समय है वहाँ तक वो लेकर के आए। उसके पहले एक इंटरनेशनल स्पीकर थे, उन्होंने ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बताया, और अभी हम लोग जो IRI के वहाँ पे उनसे बात, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मेरा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन तो नहीं है आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा व्यावहारिक बातें करूँगा जो बीइंग ए जर्नलिस्ट जो हम लोग देखते हैं जो ज़मीन पे है और जो इश्यूज़ हैं या आगे के जो चैलेंजेस हैं। असल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बहुत आत्मनिर्भर हैं, हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुनिया का जो एक्सपोर्ट का मार्केट है राइस का 40% में इस बार हम पहुंच गए, गेहूं में हम लोग 7-8% पहुंच गए, चीनी में 100 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जैसे जोशी जी ने बताया कॉटन का भी रिवोल्यूशन हुआ, और साथ में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ये भी है कि हम लोग सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं एडिबल ऑयल के, और उसका नुकसान किसानों को भी है। करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस बार हम लोग इंपोर्ट करेंगे खाद्य तेल। सो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। लेकिन एक और मैं कहूँगा कि इस सब के बावजूद जहाँ हम खड़े हैं, ख़ासतौर से मैं बात यहाँ भारतीय कृषि और किसान की कर रहा हूँ, वो बहुत सुखद स्थिति नहीं है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हमें थोड़ा आगे के लिए अलग सोचना पड़ेगा। जो हमें मिल गया, हमने हासिल किया, मेहनत की, टेक्नोलॉजी से, पॉलिसी इश्यूज से बहुत सारी चीज़ें हुई, बदलाव आया घरेलू वैश्विक सब तरीके से, वो ठीक है। बट अब शायद लग रहा है कि इससे आगे कहीं जाने का वक्त है और आगे की दिशा ढूंढनी है, क्योंकि रास्ता उधर ही जाएगा। यहाँ तक तो हम हैं जो है, और उसमें अभी ओवरऑल लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। इसमें कुछ ड्रास्टिक और रेडिकल चेंजेस होंगे तब कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि 1991 में जब रिफॉर्म शुरू हुआ तो उस वक्त तमाम सारे इकोनॉमिस्ट, हमारे एग्रीकल्चर के दूसरे पॉलिसी मेकर, सब लोगों का मानना था, जैसे अभी जोशी जी कह भी रहे, सबको पता है कि हमारा करीब जो 14 करोड़ का जो लैंड होल्डिंग है उसमें हमारे 85 to 90% 1 हेक्टेयर या उससे नीचे के किसान हैं। तो इस पर तो उनकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। NSSO का लेटेस्ट जो सर्वे कहता है कि एवरेज इनकम करीब 7-8 हज़ार रुपया है, और अभी तो ये हो गया कि जो सिस्टमेटिक असेसमेंट जो सर्वे आया लेटेस्ट NSSO का, वो ये कहता है कि जो इनकम है फार्मर की, रूरल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर के मुकाबले नॉन एग्रीकल्चर से ज़्यादा है। नॉन एग्रीकल्चर डजंट मीन कि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं और इंडस्ट्री में और वहाँ जा रहे हैं, बट जो छोटे मोटे और काम धंधे मजदूरी करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। एग्रीकल्चर मीन यहाँ क्रॉप इनकम की बात थी, तो वो एक चेंज हो गया। तो सवाल है कि 14 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है,
और अब इन 14 करोड़ का जो लैंड होल्डिंग है, वहाँ पर हमारे 44% जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी जीवन उसके ऊपर चल रहा है। अब उसका जीवन कैसे बदलेगा? या तो कृषि में बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन हो जाए, इनकम बढ़ जाए, डाइवर्सिफिकेशन हो, वैल्यू चेन का बहुत बड़ा हिस्सा फार्मर के पास जाए, नहीं तो रूरल तो आपका वहीं टिक जाएगा जहाँ पे है। और जितना अभी तो यील्ड में प्लेट्यू आ गया। अब जो हमारे जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, अब तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है, फैक्टर जो कॉस्ट मिला के उसके ऊपर जो रिटर्न है वो तो नहीं आ रहा है, वहीं पे अटक गए हम लोग। तो सवाल है कि अब होगा कैसे, कहाँ जाएंगे? इसी के लिए इस तरह का जो ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस किया है सब मिलके जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने, ये बहुत बड़े ज़रूरत के वक्त पे हुआ है। और उसमें यह भी है कि अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी अपॉइंट की है, उसका अगर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे वो बहुत बड़ा है उसमें। तो सवाल है कि यहाँ से कैसे जाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊं कि हम लोग मेरे ख्याल से 300 मिलियन टन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड ग्रेन का, शुगर का भी अच्छा कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बहुत हो गया है, दूध का हम लोग 20 करोड़ टन पे जा रहे हैं। तो सवाल है कि एक तो मैं यहाँ सबके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, साइंटिस्ट भी हैं और बाकी पॉलिसी मेकर भी हैं, क्या वाकई ये जो आंकड़े हैं ये ठीक है? मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इनमें कुछ तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है। हमारा दूध का प्रोडक्शन नापने का कौन सा मेथड है, कैसे पता करते? ये तो बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल तो हमारे ही पास है, जो लेटेस्ट एनिमल सेंसस है, बट पर एनिमल जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बहुत लो है, बहुत ही लो है। इवन हमारा जो यील्ड है, अगर हम 3-4 स्टेट्स को निकाल दें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, वो तो बहुत नीचे एवरेज से। तो अब एक तो ये भी मेरे ख्याल से ये एक तरीके का हमारा एक इम्बैलेंस भी है रीजन वाइज, रीजनल इम्बैलेंस जो है। और रीजनल इम्बैलेंस आपका जो फार्मर्स हैं उनके लाइफ को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो कमाई है, उसके ऊपर असर डालता है। और ये जो फूड सिक्योरिटी का मसला है उसमें मैं 2-3 चीज़ें अभी कहूँगा कि देखिए, अभी का जो दुनिया का जो एक मौजूदा परिस्थिति है, जियोपॉलिटिकल और दूसरी चीज़ें, उसने एक रिस्क खड़ा किया है। जब हमारा गेहूं की फसल आई, उसके पहले हमने कहा था कि वी विल बी द सप्लायर टू द वर्ल्ड ऑफ व्हीट, हम ही बनेंगे दुनिया की ग्रेनरी और सबको देंगे। और अचानक 13 मई को एक नोटिफिकेशन आया रात में कि व्हीट एक्सपोर्ट बैन। ठीक है, हमारा 14 साल का सबसे कम स्टॉक गेहूं का हमारे सेंट्रल पूल में आज है। सरकार को अलोकेशन का सिस्टम बदलना पड़ा, गेहूं घटा के चावल का बढ़ाना पड़ा। चावल का स्टॉक भी पिछले साल से कम सेंट्रल पूल में है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद। ठीक है, क्यों हो गया उसका अलग फैक्टर है। एक तो जो ग्लोबल शॉक जिसकी मैं बात करूं, जो एक आया यूक्रेन, और उसके ऊपर काफ़ी बात हुई यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर, उसने हमें मार्केट प्रोवाइड कराया, इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन हमें बंद करना पड़ा क्योंकि हमारा तो स्टॉक ही कम है। हमने कहा 111 मिलियन टन पैदा होगा, बाद में हमने उसको रिवर्स कर थोड़ा सा चेंज किया तो 106 मिलियन टन में कहा गया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि हमारा प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से कम है व्हीट का, और सरकार ने बहुत समय रहते फैसला लिया कि एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया, नहीं तो हमें यहाँ प्रॉब्लम होती। ये मैं एक क्वेश्चन इसलिए रेज किया कि ये हमारा फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर ने एक चैलेंज दिया है कि दुनिया में कभी भी कुछ घटित होता है और सप्लाई डिसरप्शंस आपका होगा। ये तीसरा डिसरप्शन अगर मैं कहूँ, पहला था कोरोना ने 2 साल पूरी दुनिया का जो है ट्रेड और उसको डिस्टर्ब किया, और उसके चलते यहाँ पर तो इंटरनेशनल स्पीकर्स ने भी बात की है, FAO का जो फूड इंडेक्स था वो 14 साल के सबसे ऊपर पहुँच गया था, क्योंकि महंगाई बढ़ी दुनिया भर में, सप्लाई डिस्टर्ब हुई पहले। उससे जब निकले के रिवाइवल होगा तो ये रशिया यूक्रेन वार आया, किसी को नहीं पता कब क्या होगा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। तीसरा, जो हम गेहूं की बात कर रहे थे, जो सब लोगों ने कहा, क्लाइमेट चेंज, जो फरवरी में टेम्परेचर बढ़ा, उसके चलते व्हीट का प्रोडक्शन 15 से 20%, जो ग्राउंड पर जो फार्मर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे जो कृषि भवन में लोग बैठे हैं ऑफिशियल्स या जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो क्या बताएंगे, उनका अपना मानना है, बट मेरा जो इंटरेक्शन है, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 से 25% तक
प्रोडक्शन गिरा। और अगर हमारा प्रोडक्शन इतना होता, अभी भी पिछले 1-2 हफ्ते में मार्केट में दाम बढ़े, एक्सपोर्ट बैन करने के बावजूद घटे नहीं है। पहली बार कई वर्षों के बाद हो रहा है कि एमएसपी के ऊपर गेहूं बिक रहा है, ठीक है। राइस पे भी अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो फूड सिक्योरिटी, जो सस्टेनेबिलिटी की हमने बात की है, उसके लिए आपके सामने कई तरीके के डिस्रप्शन कभी भी आ सकते हैं। अब ये जो चैलेंज है, यही आपको इसको मीट करना है कि ये इस तरीके का जो चैलेंज कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे, जो है उसमें ये 2-4 पॉइंट मैंने आपको बोले कि साथ में ये भी है कि तो गवर्नमेंट का डाटा है कि 17% जो अंडर नोरिस्ड जो पॉपुलेशन हमारे देश में है, हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा कुपोषित आबादी वाले देश भी हैं। तो जब सब कुछ चारों तरफ बहुत सेलिब्रेटरी मोड है और हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे जो ये एक भ्रम था कि एग्रीकल्चर से लोगों को घटा के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में भेज देंगे, वो तो खत्म हो गया है। आपका एवरेज जो ग्रोथ है इंडस्ट्री का वो तो 7-8% है, बट वहाँ पर जॉब ग्रोथ है 0.7%, क्योंकि वहाँ तो इतना आपका ये सब आ गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, तो वो लोग अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से अभी तो आई टुक ओनली जस्ट 5-10 मिनट्स ना, गिव मी 20 मिनट्स मिनिमम। हाँ, 2 घंटे का है ना साहब, तो आई इन्वेस्टेड माई एंटायर डे फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो आज यू आर सेइंग 15 हो गया, ओ माय गॉड। चलो देन इसका मतलब फिर तो 17, चलो आप मुझे 5-10 मिनट तो दे दीजिए। हाँ ठीक है, आई नो। सो सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की, हमसे पहले स्पीकर्स बोल के गए कि ये जो हो रहा है कि ग्लोबल शॉक हो, फर्टिलाइजर का जो प्रॉब्लम है, और ये हमें कतई इस बात में संकोच नहीं करना चाहिए कि फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस बढ़े, सरकार को 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी पे जाना पड़ा कीमतें रखने के लिए, उसके बावजूद प्रॉब्लम है और उसका उत्पादन के ऊपर असर आ रहा है। और ये सब इंटरनेशनल सिनेरियो है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अभी पीछे एक मिनिस्टर ने कहा भी कि हम फर्टिलाइजर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएं, लेकिन रॉ मटेरियल तो हमें फिर भी सारा बाहर से ही लाना है। फॉस्फेटिक हो या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, उसके लिए गैस ले आएंगे, बाकी के लिए तो या तो तैयार ही ले आएं या फिर यहाँ पैकेजिंग कर लें। सो और उसका प्राइस 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। इवन जो फर्टिलाइजर में इवन 4-5 गुना तक है। यूरिया जो $200 था वो $1000 तक पहुंचा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आपका फॉस्फेरिक एसिड $2000 को पार कर गया। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उसका इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी पे भी आया, और जो फ्री के एक्सपर्ट थे वो बता ही रहे थे ग्लोबली आया है। दुनिया भर में किसानों के सामने संकट पैदा हुआ और दाम बहुत बढ़े हैं और उसका प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ कि अब सवाल क्या है कि हम करेंगे क्या। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि टेक्नोलॉजी का अडोप्शन कितना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना काम हो रहा है। इस सभागार में मेरे ख्याल से हजारों सेमिनार हुए होंगे जिसमें हमारे साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने कहा होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, कम से कम एग्री जीडीपी का 1% तो कर दीजिए। प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन उसका यह है कि आपको 50,000 रुपये किलो या उससे महंगा या इस दाम पे बीज खरीदना पड़ रहा है। अब ये हमारा फार्मर जो आधा एकड़ 1 एकड़ वाला है, उसके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है क्या कि वो इस तरीका कर पाएगा? मेरा सीधा मानना है कि पब्लिक सेक्टर से आना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर का हमारा लगभग स्टैंड स्टिल हो गया है कि अभी ICAR का फाउंडेशन डे था, उसमें बताया गया 5000 वैरायटी रिलीज की गई है। आई डोंट नो, आप बताइए कि ये ऐसी वैरायटी क्यों नहीं आई कि 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गेहूं बर्बाद ना हो। अभी हमारे एक रिपोर्टर ने खबर की ईस्टर्न इंडिया में, यूपी में आपका जो ये जायद की मक्का की फसल होती है उसमें दाना ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे बढ़ा जिस वक्त वो एक टाइम था। तो दूसरे उसमें एक तो ये पहलू है, तो ये तो साइंटिफिक अप्रोच से ही जाना पड़ेगा। हाँ, एक सवाल आता है कि भाई सॉइल बड़ी खराब हो रही है, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर होना चाहिए। उसके लिए एक और है, जब कमेटी बनी है उसमें बात आई है कि भाई प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि आप पार्शियली तो जा सकते हैं। ये इतना बड़ा देश नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाके अपना पेट नहीं भर सकता, उसमें कोई सस्टेनेबल कोई वो एक मॉडल नहीं है। हाँ, ये है कि हो सकता है कि कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर में कुछ फायदा हो, ये IARI कुछ कर भी रहे हैं यहाँ पे,
उसमें क्या आपका रिसोर्सेज जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो कुछ घट जाएगी, लेकिन उसमें तो आपको साइंटिफिक अप्रोच तो रखना ही पड़ेगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपके पास सिस्टम भी नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग में आप चले जाएं और जो इमीडिएटली जो डिप आएगा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में, उसको आप कहाँ से पूरा करेंगे। फिर ये भी है कि अब तो ग्लोबलाइजेशन आपका हो ही गया, चेन आपकी सारी जुड़ गई है सब तरफ। या तो आप मार्केट को, ट्रेड को फ्री कर दे फार्मर्स के लिए, दाम यहाँ कुछ भी हो वो लोग एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है। तो नीतिगत मसलों में आपको एक संतुलन भी रखना है, किसान के बीच भी और घरेलू उपभोक्ता के बीच भी। वो बार बार दिखता भी है, ये जो व्हीट एक्सपोर्ट बैन का डिसीजन उसी संदर्भ में लिया गया जो है। तो सवाल है कि इस ओवरऑल सिनेरियो में जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, आपको साइंटिफिक अप्रोच रखना ही पड़ेगा। हमारे साइंटिस्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको नए सिरे से क्रॉप का जो एक उनको ये है आपका नई जो प्रजातियां विकसित करनी है, उनको जो क्लाइमेट की जो ये क्लाइमेट एक चेंज अपने आप में अब एक रियलिटी है, उसको कोई नकारे, उससे कोई फायदा नहीं है। उसको देख करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके काम करना पड़ेगा। दूसरे जो सरकार का भी जो सिस्टम है उसमें शायद पॉलिसी को लेकर के काफ़ी बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और हमें ये भी देखना है कि दुनिया में बाकी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लिया करीब 600-650 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दुनिया में दी जाती है और हम कहें कि अपने किसान को कि आपको कोई सब्सिडी नहीं देंगे, आप उनके साथ लड़िए, जो चीज़ें इनविजिबल हैं हमें उनको भी देख लेना चाहिए। आप ये देखिए कि जोशी जी ने कहा था कि हिमाचल के फार्मर बहुत आगे हैं। हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में फ्रूट कितना इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से हो रहा है, वाशिंगटन एप्पल हो रहा है, आपके आलमंड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके जो हाई वैल्यू क्रॉप के जो मार्केट्स हैं उनको तो हमारे इंपोर्टर को क्या हो, तो ट्रेडर है, उसको जिसमें कमाई होगी उसमें वो करेगा। कल को आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट होंगे उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आने लगेंगे। तो यहाँ पे सब्सिडी तो एक अस्थाई भाव है। दूसरे जो आपका एक्सपोर्ट के भी चांसेस हैं, हमारे पॉलिसी मेकर कहते हैं कि आगे जो हमारा प्रोडक्शन होगा, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का 1/3 हमें मिनिमम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम कम्पिटिटिव रहेंगे क्या मार्केट में? अभी यूक्रेन वॉर की वजह से दाम $500 से ऊपर चले गए वीट के, लेकिन ये शायद घट के अभी 22% दाम गिरे हैं जो है। तो ये वो जो वोलेटिलिटी है उससे क्या प्रोटेक्शन होगा? तमाम सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, वो स्कीम्स को क्या रिडिफाइन करने का वक्त नहीं है, वो रिडिफाइन करना चाहिए। तो मेरा कहने का है कि आपको एक सस्टेनेबिलिटी जो शब्द है, इसे कहते हैं टिकाऊ, तो टिकाऊ खेती हो जाएगी लेकिन उत्पादन टिकाऊ रह पाएगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि बड़े पैमाने पे आप नीतिगत सुधार करें, आप नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करें। अब तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे देश में। जो जेनेटिक कॉटन आया था, जीएम कॉटन, उसको लेकर के बहुत विरोध हुआ, लेकिन अभी जोशी जी ने कहा कि हम तो एक्सपोर्टर इसलिए हो गए कि जीएम कॉटन का यूज हुआ, और ये फैक्ट भी है। सो तमाम सारे भ्रम भी है। यहाँ मैं अपने आप को भी रखता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बहुत डिसइंफॉर्मेशन है और वीक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का जो हाल है, खासतौर से एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को लेकर के, वो बहुत पुअर है। मैं तमाम सारे प्रतिष्ठानों में सीनियर पोजीशन पे रहा हूँ। एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत कोई गंभीरता नहीं है। ओवरऑल जो मीडिया कवरेज है उसमें 2-3% रूरल और एग्रीकल्चर को कवरेज दी जाती है, बाकी चीज़ों को बहुत दी जाती है। इसलिए ये हमारे सरकार को भी, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी सोचना पड़ेगा, और जो संस्थान एग्रीकल्चर और रूरल के लिए काम कर रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये सब जो नई चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है, वो प्राइसिंग का इशू हो, वो सब्सिडी का इशू हो, वो एक्सपोर्ट का हो, इंपोर्ट का हो, पॉलिसी मेकिंग का हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन किसानों तक बेहतर रूप में पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो उसका उपयोग करें और अपने आप को एज ए इकोनॉमिक एंटिटी, क्योंकि किसान भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एंटिटी है वो। इसको कोई ये कि अन्नदाता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं। अल्टीमेटली अगर उसका गुजारा अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसको भी चाहिए, वो भी तो रेंज रोवर में जा सकता है। अगर उसकी भाई साल की 2 करोड़ की इनकम होगी तो वो थोड़ी कि वो पैदल ही घूमता रहेगा और उसका चेहरा वही दिखाया जाता है, सर पे दुपट्टा, फटा हुआ कपड़ा। सो मेरा कहना है कि आप उससे, उस माइंडसेट से भी बाहर आना पड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंगली हमारे साथ भारत भूषण त्यागी जी हैं, अभी एक नई कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी है, प्रमोद जी भी हैं। इस कमेटी को बहुत बड़ा जिम्मा मिला है। देखते हैं ये कमेटी क्योंकि कमेटी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। अगर वो वाकई
जमीनी मुद्दों को रख के और दुनिया और देश की समझ को साथ में लेके खासतौर से किसान को एक वायबल इकोनॉमिक एंटिटी में तब्दील करने के लिए राह दिखाएं, तो मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पे जाएंगे। नहीं तो हम अपने आप चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे और उससे काम नहीं चलेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि समय को देखते हुए 15 मिनट बचे हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भरत भूषण त्यागी जी को। उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम क्वेश्चंस लेंगे। आप माननीय भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित हैं और विगत कई वर्षों से जैविक खेती कार्यक्रम हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य सभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्व। इस सदन में सभी चिंतनशील मनुष्यों को हृदय से अभिवादन करता हूँ। और चूँकि नीति, तकनीकी और आगामी भविष्य को लेकर योजनाओं का जो स्वरूप उभरने की ज़रूरत है, उस पर कुछ गंभीर चर्चा हुई है। और मैं भारतीय किसान संघ और मेरे मित्र दिनेश जी को भी और मैं पारिक जी को भी बहुत हृदय से शुभकामना करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी, JP शर्मा जी उपस्थित हैं, तो मैं हृदय से आपको भी सम्मान करता हूँ। कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनको मैं आज छेड़ना चाहूँगा, तो आपकी इजाज़त है तो मैं छेड़ दूँ। गंभीर मुद्दा ये है, 1987 में मैंने 1976 से खेती शुरू की थी और 1987 में मुझे पता लगा कि खेती की आमदनी, उत्पादन तो बहुत बढ़ा है लेकिन मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही और मैं भविष्य में कर्जे से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और हो सकता है कि मेरी परिवार की समाज गति बिगड़ जाएगी। ये आकलन था। उस आकलन को 1 वर्ष तक ऑडिट किया। आदरणीय हरवीर सिंह जी से निवेदन है कि हरवीर सिंह, ये मुद्दा ज़रूर आप सुनेंगे, चूँकि आप बहुत गंभीर चिंतनशील व्यक्ति हैं, मुझे आपका परिचय है। तो उसका विश्लेषण करने से मुझको जो चौंकाने वाले तथ्य साथ हुए, मैंने वो रिपोर्टिंग भारत सरकार को भी उस समय पेश की। रिपोर्ट ये थी कि उत्पादन के लिए जो लागत मैंने ट्रैक्टर खरीदा था, उस ट्रैक्टर का पैसा भी मैंने बैंक से लिया था, उसको ब्याज बराबर दिया। चाबी लगाता हूँ तो डीजल बाज़ार से, पुर्जा बाज़ार से, मरम्मत बाज़ार से। तो मुझे 1 वर्ष के बाद ये पता लगा कि मेरी जुताई का काम बाज़ार में चला गया। अब मुझे कितनी बार जुताई करने से क्या उत्पादन मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तो तय नहीं है, लेकिन जब भी मैं चाबी लगाऊंगा बाज़ार का फ़ायदा ज़रूर होगा। पानी निकालने के लिए भी सारा चीज़ बाज़ार को चली गई, सारी मशीन, उपकरण, ईंधन, जो भी कुछ है बाज़ार का है। खाद बाज़ार से, बीज बाज़ार से, दवाई बाज़ार से। मैं इस सदन से एक सवाल की अपेक्षा करता हूँ, जब खेती की लागत सारी की सारी बाज़ार से आती हूँ, भैया इन्हें थोड़ा बंद कर लें। मेरा इस सदन से अपेक्षा है कि यदि खेती की सारी लागत बाजार से आती हूं और अपनी शर्तों पर आती हूं, तो खेती बाजार करता है या किसान करता है? पहला सवाल। हमारी इकोनॉमी का फर्स्ट डाइवर्जन है ये। सेकंड फेज, जब मैं अपने उत्पादन को बाजार में बेचने गया तो उसकी कीमत भी बाजार ने लगाई और अपनी शर्तों पर खरीदा। मैं यहां भी खड़ा रहा। और तीसरी बात, जब मैंने ये देखा कि मेरे गेहूं का बिस्कुट खरीदने में जाता हूं तो उसका प्रोसेसिंग का काम भी इस बाजार ने किया और कंज्यूमर बनकर मैंने अपने गेहूं का बिस्कुट मैंने खरीदा और उनके शर्तों पर खरीदा, 10 गुने रेट पर खरीदा कंज्यूमर ने। तो खेती में उत्पादन से लेकर बाजार को इस तरीके से हावी होते हुए मैंने देखा और मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी इस मुद्दे को लेकर कि यदि हमने इस आर्थिक डाइवर्जन को खेती से नहीं रोका तो ये खेती किसानों को और गांव को उजाड़ कर रख देगी। उत्पादन बढ़ने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरे वैज्ञानिकों ने जो काम किया है, जो देश ने काम किया, मैं हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन आज 3 गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं। इकोलॉजी फर्स्ट मुद्दा बन गया है, इकोनॉमी सेकेंडरी मुद्दा है और हेल्थ और भी बड़ा मुद्दा बन गया है। हम 2050 की चिंता ना करें, हम 2050 की योजना बनाकर आगे बढ़ें। ये मेरा इस सदन से निवेदन है। इसलिए क्या करना है, हमको नीतिगत स्तर पर साफ होना है। हम टेक्नोलॉजी, साइंस और अनुसंधान के किसी मुद्दे को और नीति से अलग नहीं कर पा रहे हैं। नीति होती क्या है ये स्पष्ट नहीं है। बड़ी साफ साफ सूत्रों में है
नीति का अर्थ है नैतिकता से, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना ही किसी राज्य का धर्म है और नीति है। इसको यदि हम ध्यान से देखते हैं तो पता ही लगता है कि जब आज़ादी के बाद में हमने जिन परिस्थितियों को झेला था, वहाँ भुखमरी हमारे सामने समस्या थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि हमने अपने का लक्ष्य तो भुखमरी को बनाया, लेकिन हमने जो कानून बनाए थे खेती के, वो ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन के कानून थे। पूरी दुनिया की हमने नकल कर कर खेती पर व्यापार के कानून थोप दिए थे। आज उनमें बदलाव की ज़रूरत है। हमको इस समय अपनी नीति बदलने की ज़रूरत है, और नीति का आधार है कि प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था को समझकर कैसे डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मैं अब सभी वैज्ञानिकों से निवेदन करने आया हूं इस बात को लेकर कि मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में देश अब बहुत आगे तक नहीं जाएगा। जहां पर है वहां प्रोडक्शन रुक जाएगा, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। कारण क्या है कि वहां पर पहले ही 80% से ज़्यादा किसान छोटी जोत वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको बड़े गंभीरता के साथ आगे बढ़ना है, और बढ़ने का तरीका है कि क्लस्टर अप्रोच में लाकर किस तरीके से किसानों को, जैसे अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात आई है, अब पूरे देश में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फॉर्मुलेशन का काम चल रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्टिव एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस पर कोई चर्चा इस देश में नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। क्या करेंगे हम लोग? कंपनियां बनेंगी और एनजीओ की तरह वो सब फिर ब्लैक लिस्ट में जाएंगी। एक अवसर है हमारे सामने। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सदन 3 जगह गंभीर होकर काम करे। नंबर 1, देश की कृषि नीतियों को हम अब व्यवस्था के साथ जोड़ें, परिस्थितियों के साथ ना जोड़ें। वैज्ञानिक 2050 की भुखमरी की चिंता ना करें, बल्कि 2050 में भारत जगत गुरु कैसे होगा और पूरी दुनिया को कृषि नहीं बल्कि जीने का आधार स्तंभ कैसे देगा। ये भारतीय किसान संघ का मोटो यही है। दिनेश जी पारिक जी को मैंने कई बार इनसे बात की है, ये बार बार इनके अंदर से जो बात निकल कर आती है वो इसी तरीके की मुद्दे की बात निकल कर आती है। मैं साधुवाद देता हूँ इनको इस बात के लिए। मैं वैज्ञानिकों को ये निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर हमने खेती करके देखा है, उसमें चाहे हम प्राकृतिक खेती की बात करें, जैविक खेती की बात करें, लेकिन साइंटिफिक वैलिडेशन के बिना एक कदम हमको नहीं रखना चाहिए, एक भी कदम। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन का मतलब है कि हमने अत से इति तक उसको विश्लेषण पूर्वक मूल्यांकन किया है। आखिर उसमें उत्पादन क्या होगा, उसकी इकोनॉमी कैसे होगी, उसमें रोजगार के अवसर क्या होंगे, उसमें देश की कितनी बड़ी संख्या है, कैसे उसमें लगेगी, उस सारे पहलू पर चर्चा की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना है, एक बहुत छोटा सा सूत्र मेरी समझ में आया। चूँकि मैं अपनी खेती में कोई रसायनों का प्रयोग नहीं करता और अच्छे तरीके से अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, तो ये सूत्र मैं देना चाहूँगा। उसके मोटे मोटे 4-5 सूत्र हैं कि नेचर जो है कोएग्जिस्टेंस में काम करती है। ये अनुसंधान का विषय है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में जो पूरकता है, जो हार्मनी है, वो उसको हम मैकेनिकल ढंग से नहीं तोल सकते। वो संबंध हमको समझना पड़ेगा। तो संबंध को समझने की जो डेफिनेशन है ये अनुसंधान में आनी चाहिए। हम केवल उसको टेक्नोलॉजी से आगे ना लेके चलें, क्योंकि संबंध का कोई ना तो व्यापार हो सकता है और ना ही संबंध का कोई बंटवारा हो सकता है। धरती से आपका भी संबंध वही है और मेरा भी संबंध वही है, इसमें विशेषज्ञता की भी बात नहीं है। एक तो मेरा ये निवेदन आपसे। दूसरा है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं और प्रोडक्शन की चिंता हमको है कि 2050 में कैसे हो जाएगा या कम ना हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता की ज़रूरत है। और गुणवत्ता का जो वेरिफिकेशन है वो सारा का सारा जो है वो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में है और वही डाइवर्सिफिकेशन के साथ लागू होता है। किसानों को ये चीज़, इसका मैकेनिज्म सिखाया जाए कि वो अपने एक खेत में एक से ज़्यादा फसल कैसे लें। और मैंने ये देखा कि जब मैंने अपने पिताजी की खेती को देखा था तो मक्का के खेत में से 10-11 फसल हम निकालते थे। पूरे परिवार की खेती थी वो। आज हम उसी मक्का की खेती में डूब गए हैं। 1500 रुपये किलो, 1500 रुपये कुंटल हमारी मक्का नहीं बिक्री और 6000 रुपये किलो तक के बीज मार्केट में आ गए। कौन इन पर रोक लगाएगा? कैसे देश की नीति कैसे बनेगी? ये दुर्दशा है। और तीसरा मेरा कहना यह है कि प्रोडक्शन डेंसिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन डेंसिटी का मतलब है कि खेत की
खेत के आयतन को हम जो घटा हुआ देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में उत्पादन हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई में नहीं, ऊंचाई और गहराई में उत्पादन हो रहा है, तो किसानों के साथ बहुत बढ़िया परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए कि तुम्हारे पास ज़मीन कम नहीं है, लेकिन यदि तुम इसको ऊंचाई तक देखोगे तो मैंने ये देखा कि जैसे ही एक खेत में हम अनेक फसल लगाते हैं मल्टी लेयर प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। कोई चिंता की बात नहीं है, देश को चिंता की बात नहीं। हम ना हाई डेंसिटी में जाने की ज़रूरत, ना हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाने की ज़रूरत, वो सारे किसानों के ऊपर छोड़ दो। ये ऐसा इनपुट के नाम पर ये तमाशा भी ना हो कि एक गाय के गोबर में मतलब 1 ग्राम गोबर में 2 लाख बैक्टीरिया है और ये करके वो हो जाएगा और ये करके वो हो जाएगा। इस तरीके की जो बातें आती हैं इन पर गंभीर चर्चा होने की ज़रूरत है इस देश में। ये देश विज्ञान, ये देश की बात नहीं कर रहे, दुनिया विज्ञान के जरिए आगे बढ़ रही है। हम कैसे पीछे लेके चलेंगे? और चौथी बात मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर को इकोलॉजी से ज़रूर जोड़ दें। ये ज़रूर लिख लीजिए कि जिनको इकोलॉजी नहीं आती वो एग्रीकल्चर क्या समझेंगे। इकोलॉजी का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी भी एरिया स्पेसिफिक जोन में वर्षामान, तापमान, ऋतुमान, वहाँ की फसलें, वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु और मनुष्य का भोजन क्या है, कम से कम इतना तो देख लें हम। ये प्रकृति में सारा सजाया है। लोकल फॉर वोकल के नाम पर छोटी सी बात ना करें, थोड़ा फैल कर बात करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेता आपका, मैंने जो समय लिया 1 आध मिनट ज़्यादा ही ले लिया है, लेकिन एक विषय ज़रूर मैं आपसे निवेदन के लिए करना है कि अब इस समय इस देश में गहरी चिंतन पर बात उठ गई है, कमेटियां बन रही हैं, एमएसपी पर झगड़ा है। मैं 3 बात कहूँगा, बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, बहुत एक ही लाइन की है। जिस देश के पास में कृषि नीति होंगी प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप, जिन राज्यों के पास में कार्य योजना होगी वहाँ की डाइवर्सिफिकेशन के अनुरूप, इकोलॉजी के अनुरूप, तो उस देश के किसानों के हाथ में कार्यक्रम होगा और वो किसान आपको विश्व गुरु बनाने में देर नहीं लगाएगा। ये मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। आज हमने उसके हाथ काट दिए, वो बाजार के चंगुल में फंसा है, उसको समझ में नहीं आता। वो यूट्यूब देखता है तो 50 तरीके की खेती है, हर लिखा है, टाइटल लिखा है 1 एकड़ में 4 लाख कैसे कमाएं। गुमराह है वो इन चीज़ों में। इन सब चीज़ों पर रोक लगने की ज़रूरत है, चर्चा होने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा? मेरी अंतिम लाइन बहुत कठोर है, कड़वी है, लेकिन सुनने लायक है। क्या लाइन है? लाइन ये है कि बजट का क्रियाक्रम ना करते रह जाएं। हम खेती को इनपुट मैनेजमेंट में डुबो दिए और राष्ट्र हमारा बजट के क्रियाक्रम में डूबने जा रहा है। ये चुनौती बन गई है दोनों चीज। ये व्यापार के फंडे, इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। उस जमीन की इकोनॉमी पर हमें प्रोडक्शन बेस इकोनॉमी को अब सस्टेन करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है। हमारे अर्थशास्त्रियों को इसको चिंतन बदलना होगा, हमारे नीतिकारों को चिंतन बदलना होगा, हमारे वैज्ञानिकों को चिंतन बदलना होगा, अनुसंधान की दिशा, शोध, शिक्षा और विज्ञान को बदलना होगा। इसलिए मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करें। मैं थोड़ा सा किसानों की संवेदना के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहता हूँ, तो कभी कभी संवेदना आती हैं। वो हरवीर सिंह को देखकर, इनका परिचय मुझे 1.5 महीने पहले कहीं से मिला था और मैं भी भूल गया था कि ये वही हरवीर सिंह है। लेकिन फिर आज आपसे मुलाकात हुई तो मैं कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ उठाइए। अब आवाम में आवाज़ उठने की जरूरत है ताकि गहर चर्चा हो। अब मुद्दे नहीं, हमको व्यवस्था का स्वरूप चाहिए। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सुधांशु सिंह आज के हमारे वक्ता रहे डॉक्टर चानिंग आर्नल्ड है क्या? नहीं है। डॉक्टर पीके जोशी, डॉक्टर अजय कोहली जी, डॉक्टर कोहली जी, अजय कोहली जी, भूषण जी, क्या आपको भी